बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, सालाना इम्तहानात की तैयारी के सिलसिले में कंप्यूटर साइंस के मारूजी सवालात का टेस्ट ऑन ईयर जो है वो जारी है आजकल, और आज उसका तीसरा टेस्ट ऑन ईयर हो रहा है। और आज का जो ये टेस्ट है वो चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट और चैप्टर नंबर 3 हाफ। चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट है और चैप्टर नंबर 3 जो है वो हाफ जो है वो इसमें शामिल किया गया है। और आज का ये टेस्ट जो है वो 45 क्वेश्चंस पर मुश्तमिल है। सो होप सो आपने पहले से अपनी आंसर शीट जो तैयार की हुई होंगी। आज स्टूडेंट आपने ये करना है कि आंसर शीट के एक कोने पे अपना रोल नंबर लिखना है, और दूसरे कोने पे जितने आपके मार्क्स होंगे बटा 45 करके, तो एंड में आपने मुझे उस मार्क शीट की तस्वीर जो है वो इनबॉक्स जो करनी, ताकि मुझे मेक श्योर हो कि आप लिख भी रहे हैं या कि फर्जी नंबर जो है वो ग्रुप के अंदर शेयर किए जा रहे हैं। आज आप अपने नंबर शेयर नहीं करेंगे बल्कि एंड में आंसर शीट की तस्वीर खींचेंगे और वो इनबॉक्स जो करेंगे, और उसके एक कोने में आपका रोल नंबर जो है वो वाजिया लिखा हुआ होना चाहिए, और आपके मार्क्स जो कितने आए ये लिखे हुए होने चाहिए। तो स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के क्विज की तरफ और इसको शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, a collection of computers connected together to share resources and information are called computer sharing, computer network, computer interconnecting, computer linking. A collection of computers connected together to share resources and information are called computer sharing, computer network, computer interconnecting, computer linking. Then question number 5, a computer network must contain at least dash number of computers. A computer network must contain at least dash number of computers, 2, 20, a few, or hundreds. Then on next page आपने जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो है क्वेश्चन नंबर 8, many networks include a central computer are called. Many networks include a central computer are called server, bridge, gateway, or client. Then question number 11, which of the following is communication device? Which of the following is communication device? Router, USB, UTP, or Ethernet. Then question number 13, which type of network covers a small area? Which type of networks covers a small area? स्टूडेंट ये बोर्ड में आई थिंक आ चुका है ये क्वेश्चन। LAN, WAN, MAN or NAN. Then question number 17, a typical LAN, each computer on the network is connected through. In a typical LAN, each computer on the network is connected through cables, satellites, microwaves, or phones. Then question number 17 के बाद question number 19, which problem occurs when two workstations on shared Ethernet try to access LAN at the same time? Which problem occurs when two workstations on the shared Ethernet try to access LAN at the same time? Termination, deadlock, collision और एक्सीडेंट। ये क्वेश्चन मैंने गुज़श्ता टेस्ट में भी आपसे पूछा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में आ सकता है। देन अगले पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट टाइप ऑफ नेटवर्क इज एन द इंटरनेट? व्हाट टाइप ऑफ नेटवर्क इज द इंटरनेट? इंटरनेट किस टाइप का नेटवर्क होता है? लैन, मैन, वैन और पैन। Then question number 28, the network that connects different campuses of a college in city is an example of. ये क्वेश्चन कल भी पूछा था और ये बोर्ड में बारहा आ चुका है। The network that connects different campuses of a college in the city is an example of LAN, WAN, MAN और GAN. ये था क्वेश्चन नंबर 28। Then 29, mobile phone cellular system often use.
Mobile phone system often use LAN, WAN, MAN or GAN. Then question number 30. NIC stands for Network Internal Card, Network Industrial Computer, Network Internet Connection, Network Interface Card. Then question number 33, बहुत important question friend. De facto means by nature, by fact, by law, or by luck. Then another very important question, which of the following is de facto standard? Which of the following is a de facto standard? ANSI, ISO, SNA, IEEE. ये था क्वेश्चन नंबर 36। अब आपने क्वेश्चन नंबर 38 हल करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है। सेट ऑफ रूल्स टू एक्सचेंज डेटा। सेट ऑफ रूल्स टू एक्सचेंज डेटा इन अ कम्युनिकेशन नेटवर्क इज कॉल्ड मेथड, प्रोसीजर्स, प्रोटोकॉल और टोकन। देन क्वेश्चन नंबर 41, Which one is not a de jure standard? वही सवाल है लेकिन उलट तरीके से पूछा गया है। Which one is not a de jure standard? SNA, IEEE, ANSI, ISO। ठीक है जी, ये था क्वेश्चन नंबर 41। अब है जी 46। The most commonly used LAN protocol is, the most commonly used LAN protocol is Ethernet, token ring, ARNet, ARCnet या WiMAX। 46 के बाद है जी 47। The act of listening to the medium for a message is called, ये मैंने कल भी सवाल पूछा था आपसे, इंपॉर्टेंट सवाल है। The act of listening to the medium for a message is called contention, carrier sensing, transparency or collusion। Then question number 52, ये बोर्ड में पेपर में आ चुका है ऑलरेडी। The physical layout of the network is known as, I think ये 10th की क्लास में भी आता होता है ये सवाल, 9th का जो पेपर होता है। Physical layout of a network is known as topology, session, link or style। Topology, session, link or style। Then चलते हैं जी नेक्स्ट पेज के ऊपर, और यहाँ पे आपने जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो है जी 59। Terminator are used in dash topology। Terminator are used in dash topology: bus, star, mesh और ring topology। Then next question है जी, ये 12वां पेपर में आ चुका है, 12वां 65। Two dissimilar networks can be connected by, two dissimilar networks can be connected by a gateway, a bridge, a bus or all। Then 66, a device used to connect similar network is called, a device is used to connect similar network is called gateway, bridge, both A and B, or bus। Then question number 68। ये क्वेश्चन स्टूडेंट मुझे इसलिए भी याद है कि जब हमने पब्लिक सर्विस का एग्जाम दिया था, पब्लिक सर्विस एग्जाम पीएससी जो बोलते हैं, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। OSI रेफरेंस मॉडल हैज, OSI रेफरेंस मॉडल हैज 7 layers, 3 layers, 6 layer और 1 layer। ठीक है जी, ये था क्वेश्चन नंबर 68। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। नेक्स्ट पेज पे आपने जो क्वेश्चन सॉल्व करना है स्टूडेंट वो है सबसे पहले 74। The bottom layer of OSI model is, the bottom layer of OSI model is application layer, physical layer, transport layer और presentation layer। ठीक है जी। Then 83, the dash layer that is responsible for transferring frame is, the dash layer that is responsible for transferring frame is application layer, presentation layer, data link layer or session layer। Then 85, in the OSI model, encryption and decryption are functions of the dash layer, application layer, presentation layer, transport layer or session layer।
देन ये था क्वेश्चन नंबर 85। आप चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर, और वहां पे आपने जो क्वेश्चन हल करना है सबसे पहले वो है जी 89। OSI स्टैंड्स फॉर, OSI से क्या बनता है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटरनेशनल, ओपन स्मॉल इंटरनेट, ओपन सिस्टम इंटरलिंक। Then question number 91. A large number of computers all over the world connected to one another is called interlink, internet, intranet, goofer. A large number of computers all over the world connected to one another is called. ठीक है जी, तो ये था क्वेश्चन नंबर 91। देन क्वेश्चन नंबर 93 बहुत इंपॉर्टेंट है जी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस इज कॉल्ड अपलोडिंग, वेबसाइट, डाउनलोडिंग और लिंकिंग। आगे जी क्वेश्चन नंबर 98। The process of transferring a file from our own computer to the remote computer on a network, uploading, browsing, downloading or pasting। ये था क्वेश्चन नंबर 98। अब क्वेश्चन नंबर 99। Which program is used to connect to a remote computer to the internet? Which program is used to connect a remote computer to the internet? www, email, FTP or telnet or telnet। Then question number 103। A device that connects multiple network using similar or different protocol। ये सवाल भी स्टूडेंट बहुत अहम है। A device that connects multiple network using similar or different protocol is router, bridge, gateway or bus। Then question number 104। Typical data transfer rate in LAN, typical data transfer rate in LAN are of the order of bit per second, kilobit per second, megabit per second और टेराबिट पर सेकेंड। देन इसका आखिरी जो क्वेश्चन है जी 105। ड्यूरिंग ट्रांसमिशन द कंटेंट्स ऑफ द डेटा आर चेंज्ड बाय यूजिंग दिस टेक्निक, चेंजिंग, इंक्रिप्शन, प्राइवेट और बायोमेट्रिक्स। ठीक है जी, तो यूं स्टूडेंट ये हमारा चैप्टर नंबर जो है वो 2 जो कंप्लीट हुआ है। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। सो जी स्टूडेंट, ये आ गया चैप्टर नंबर 3, और इसका आपने जो सवाल सबसे पहले हल करना है वो क्वेश्चन नंबर 1। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड डेटा प्रोसेसिंग, डेटा कम्युनिकेशन, डेटा सीक्वेंसिंग और डेटा सेंडर। ठीक है जी। देन क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मेनी डिवाइसेस कैन एग्जिस्ट बिटवीन ए सेंडिंग एंड रिसीविंग host? How many devices can exist between a sending and receiving host? 1, 2, 10 or any? Question number 3 के बाद question number 4। Physical path that connects the source and receiver is known as। Physical path that connects the source and receiver is communication channel, decoder, encoder or linear medium। This was question number 4. Now jump to question number 7. Digital signal represent a sequence of, digital signal represent a sequence of dash values, continuous value, discrete value, unique value और bytes value। ठीक है, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। Sound, light and radio waves are example of dash signal। Sound, light, radio waves are example of dash signal। Digital signal, एनालॉग सिग्नल, सिंपल सिग्नल या ग्रीन सिग्नल। देन क्वेश्चन नंबर 10। द नंबर ऑफ टाइम्स ए वेव रिपीट्स ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम इंटरवल इज कॉल्ड। द नंबर ऑफ टाइम्स ए वेव रिपीट्स ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम इंटरवल इज कॉल्ड पल्स, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज। देन क्वेश्चन नंबर 12। 12 इस चैप्टर में से बोर्ड में आ चुका है। फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन, frequency is measured in second, bps, hertz या amps। ये था क्वेश्चन नंबर 12।
अब क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। BCD code is a dash bit code. BCD code is a dash bit code. Then question number 30. How many characters can Unicode represent? How many characters can Unicode represent? 65,536, 10,000, 15,000 या 500. Then question number 33. Transmission that allow data to move only in one direction at a time is called. Transmission that allows data to move only in one direction at a time. Half duplex, simplex, full duplex, or duplex. Then question number 35. The transmission in which data can be received and sent simultaneously is called simplex, full duplex, half duplex या सादा duplex. Then लास्ट आज का क्वेश्चन और वो है क्वेश्चन नंबर 37 बोर्ड के पेपर में आ चुका है. टेलीविजन एंड रेडियो ब्रॉडकास्ट आर एग्जांपल्स ऑफ. टेलीविजन एंड रेडियो ब्रॉडकास्ट आर एग्जांपल्स ऑफ फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन, हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन, सिंपल ट्रांसमिशन और डुप्लेक्स ट्रांसमिशन. तो ये था क्वेश्चन नंबर 37. इसके साथ ही हमारा आज का टेस्ट स्टूडेंट कंप्लीट हो गया. ये स्टैंडर्ड जो टेस्ट है ये 45 क्वेश्चन पर मुश्तमिल था. अब हम चलते हैं आंसर्स की तरफ. आंसर्स में बोलूंगा, आपने टिक करना है. अगर आपने अभी तक आंसर शीट पे अपना रोल नंबर नहीं लिखा तो वो लिख लें, क्योंकि आज आपने आंसर शीट की तस्वीर जो है वो शेयर करनी है ग्रुप के अंदर मेरे साथ. तो मैं अब आंसर बोलने जा रहा हूँ, आप उनको साथ साथ चेक करें. क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था जी कंप्यूटर नेटवर्क. क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था TOO2. क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर था सर्वर. क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था राउटर. क्वेश्चन नंबर 5 लैन. क्वेश्चन नंबर 6 केबल्स. क्वेश्चन नंबर 7 बुलियन. क्वेश्चन नंबर 8 वैन WAN. क्वेश्चन नंबर 9 मैन MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. क्वेश्चन नंबर 10 इसका आंसर भी मैन मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. क्वेश्चन नंबर 11 का नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. क्वेश्चन नंबर 12 बाइफैक्ट. क्वेश्चन नंबर 13 SNA. क्वेश्चन नंबर 14 प्रोटोकॉल. 15 के लिए SNA. 16 के लिए ईथरनेट. क्वेश्चन नंबर 17 के लिए कैरियर सेंसिंग. क्वेश्चन नंबर 18 के लिए टोपोलॉजी. क्वेश्चन नंबर 19 के लिए बस. क्वेश्चन नंबर 20 के लिए गेटवे. 21 के लिए ब्रिज. 22 के लिए 7 लेयर्स. 23 के लिए फिजिकल लेयर. 24 के लिए डेटा लिंक लेयर. 25 के लिए प्रेजेंटेशन लेयर. 26 के लिए ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन. 27 के लिए इंटरनेट. 28 के लिए वेबसाइट. 29 के लिए अपलोडिंग. 30 के लिए टेलनेट TELNET टेलनेट. 31 के लिए राउटर. 32 के लिए मेगाबिट पर सेकंड. 33 के लिए इंक्रिप्शन. 34 नंबर का जवाब है जी डाटा कम्युनिकेशन. 35 का जवाब है एनी. 36 का जवाब है कम्युनिकेशन चैनल. 37 का जवाब है डिस्क्रीट. 38 का जवाब था एनालॉग. 39 का आंसर था फ्रीक्वेंसी. 40 नंबर सवाल का जवाब था हर्ट्ज HERTZ हर्ट्ज. 41 नंबर सवाल का जवाब था 4 बिट. 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर था 65,536. 43 का आंसर था सिंप्लेक्स और 44 का आंसर था फुल डुप्लेक्स और 45 का आंसर था सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन. तो स्टूडेंट ये आंसर मैंने आपको बता दिए. जल्दी से अपने नंबर जो काउंट करें. शीट के दूसरे कोने के ऊपर लिखें. शीट के एक कोने पे आपका रोल नंबर जो वाजिया मुझे लिखा हुआ नजर आना चाहिए. आज आपने ग्रुप में अपने मार्क्स नहीं लिखने, बल्कि ये तस्वीर जो खींच के ग्रुप में शेयर करनी है, ताकि पता लगे कि हर बंदा प्रैक्टिस कर रहा है या कि फर्जी जो नंबर जो ग्रुप के अंदर जो वो शेयर कर रहा है. और दूसरा, ये नोट्स जो पड़े हुए होते हैं, इसके लिए अब आपको बुक की भी जरूरत नहीं है. बुक को अपनी संभाल के रख दें और जब भी आप फारिग हों, चाहे वीडियो डाउनलोड कर लें या अगर आपके पास इंटरनेट का पैकेज है तो तकरीबन शाम को बैठ के दोबारा एक दफा इसको पुराने जो टेस्ट हैं उनको भी और इसको भी बार बार हल करें, ताकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ ये एक दफा आपके जहन नशीन हो जाए अच्छी तरह, तो पेपर वाले दिन आपको परेशानी ना होगी. कल के टेस्ट के लिए स्टूडेंट जो नोट कर लें, कल हमारा जो है वो
चैप्टर नंबर 3 जो कंप्लीट हो जाएगा और उसके साथ हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर जो है वो 4, उसको चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 का टेस्ट लूंगा। ठीक है, जिसमें कल का टेस्ट जो है वो चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 पर जो है मुश्तमिल होगा। तो आज के लिए इतना ही, और दुआओं में याद रखिएगा कि ये मान